Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, as all of you are aware, in this series, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies, which helps us understand these companies in a much better way. We get to know about their business model, their growth journey, their future growth plans, and in this process, a lot of valuable information is available to the investors. And friends, today we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Sacrom Limited, and it has got a very interesting business model. And I have the privilege and pleasure of having both the promoters with me, Mr. Manoj Arora, who is the chairman and managing director. मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको समय देने के लिए. मुझे यकीन है Thank सर you very much. Our pleasure. सर इस छोटे इंटरव्यू में हमको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी के बारे में मिलेगी. We also have Mr. Dhruv Arora, who is the whole-time director. Dhruv, it's a pleasure to have you also on the show. Our pleasure as well. Thank you. So, मनोज जी, पहला सवाल जो आपको मैं पूछना चाहूंगा सर, हमको मोटा मोटी बताइए सर, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है. हालांकि हम जानते हैं आप फ्रेग्रेंसेस और एरोमाज में है और फ्लेवर्स में है, लेकिन सर ये धंधा मुझे लगता है मैं पढ़ रहा था आपका प्रोस्पेक्टस सर, 40 साल पुराना आपका बिजनेस है. तो सर थोड़ा सा बिजनेस जर्नी के बारे में मुझे बताइए. ये बिजनेस आपके फादर या ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, उसके बाद आप थर्ड जनरेशन के प्रमोटर हो. तो सर ये जर्नी कैसे शुरू होगी? आई मीन ये धंधे में एंट्री करने की कोई स्पेशल वजह थी या आपने ये बिजनेस को समझ लिया, इसका स्किल सेट मास्टर किया और उसके बाद आपने एंट्री की? तो सर पहले इसके बारे में कुछ बताइए. Thank you for giving me the opportunity to introduce Sacrom. इंडिया में हम लोग सैचुरम भी बोलते हैं, बट यूरोप में सैक्रोम बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन की बात है, मतलब एक ही है. वी आर इन द बिजनेस ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर. वी आर अ क्रिएटिव हाउस. वी क्रिएट new fragrances and flavors as well as new technologies, and we cater to the FMCG, food and non-food, both in industries in a big way. Journey कहाँ से शुरू हुई? Journey, like I belong to the third generation and Dhruv is from the fourth generation, and we are in this business for over 100 years. I am in this business myself for more than 40 years. So we have seen the rising of this industry coming from nowhere to becoming the leading player in India as well as global. We have the global outreach. Exactly. And we are moving towards our aspirations to become a leading company in the world of perfumery, fragrances and flavors. बिल्कुल. मनोज जी, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में मुझे बताइए सर, हमारा अभी मार्केट पोजीशनिंग क्या है? हालांकि 100 साल पुरानी आपकी लेगेसी है, आपने खुद 40 साल इंडस्ट्री में काटे हैं. सर व्हाट इज द डोमेस्टिक पोजीशनिंग, और क्या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं या ज्यादातर हमारा फोकस अभी डोमेस्टिक मार्केट पे ही है? सर इसके बारे में कुछ बताइए. मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग एरोमा इंग्रेडिएंट्स में 100 साल से हैं, बट फ्रेग्रेंसेस के बिजनेस में लगभग 40 साल से हैं. ओके, ठीक, समझ. ओके. और हमारा जो विजन है, इंडिया इंडिया हैज ग्रोन, अब इंडिया की जो एफएमसीजी कंपनी, एक जमाना था जिस समय बाहर के कैमे सोप आता था या बाहर के प्रोडक्ट आते थे, हमें लगता था वो अच्छे हैं. बट लुक एट टुडेज इंडियाज एफएमसीजी कंपनीज. वी आर प्रोड्यूसिंग दी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, and the for world class product you should have the world class fragrance and flavors, and we are participating in a humble way to provide the best of the products which meet the global safety guidelines at par or the better with any best company in the world. समझ. मनोज जी, अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट के एसक्यूज के वगैरह आप बात बता दें, क्योंकि आपका काफी बड़ा प्रोडक्ट एसक्यूज होगा. आपने बोला अलग अलग फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स आप बनाते हो. तो सर मुझे बताइए मोटा मोटी हमारे कितने एसक्यूज होंगे, और क्या हर एसक्यू थोड़ा कस्टमाइज होता है हर कस्टमर के लिए? यानी XYZ कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आप उसके हिसाब से फ्रेग्रेंसेस या फ्लेवर्स बनाते हो. तो सर मोटा मोटी अभी करंटली हमारा एसक्यू का कितना बड़ा रेंज है, और आगे ऑन एवरेज हर साल सर हम कितने एसक्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कस्टमर वांट्स? We work as a creative house and develop the fragrances or flavors as per the requirement, as per the brief of the customers. उनको जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी उनकी वो है, हम जो कैटेगरीज कवर करते हैं उनमें हेयर केयर, फैब्रिक केयर, बेबी केयर, कॉस्मेटिक्स, फाइन फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल केयर, पर्सनल वॉश, बॉडी केयर, होम केयर, हाइजीन. कोविड के टाइम पे आपने देखा कि
हैंड सैनिटाइजर्स, फ्लोर क्लीनर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये तो हो गया हमारा फ्रेग्रेंस पार्ट का। हाँ, फ्लेवर्स में हम लोग जो कवर करते हैं, बेकरी, बेवरेजेस, कॉन्फेक्शनरी, ओरल केयर, डेयरी, सीजनिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। You cannot imagine your day or an hour without the usage of fragrance और flavor। बिल्कुल। आपके मिनरल वाटर के अलावा हर चीज में फ्रेग्रेंस और फ्लेवर है। आप अपनी एक चाय पीते हैं, जब तक उसका कलर और फ्लेवर सही नहीं हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमारी जो फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सबसे पहले हम उठ के टूथपेस्ट यूज करते हैं, टॉयलेट सोप यूज करते हैं, हमारे घर में डिटर्जेंट्स में यूज होता है, होम केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, अगरबत्ती में यूज होता है। उसके अलावा हमारे जूसेस, बेवरेजेस, बेकरी, जैसे मैंने आपको बताया। सो योर लाइफ इज इनकम्प्लीट एंड जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं निरस है, विदाउट फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मनोज जी। आई थिंक आपने सही कहा कि आज फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स के बिना हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल इनपुट होता है। सर मुझे बताइए, अभी ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, तो अभी हम आसपास करीबन 100 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है। सर अगले 3-5 साल के लिए आपका क्या अनुमान है? मोटा मोटी आपको क्या लगता है कि ये मार्केट कितना बड़ा हमारे लिए हो सकता है, और हम इस मार्केट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे? With the limited resources, what's our resources available to us? We were growing more than 20% year on year. आज हमारा जो नया प्लांट आ रहा है, दैट विल बी मच मच बिगर, और हम बहुत मल्टीपल हमारी ग्रोथ होगी, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब देयर इज अ ह्यूज रनवे फॉर ग्रोथ। डिमांड काफी अच्छी है, और आपके लिए तो मुझे लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मनोज जी, कि हमारा धंधा बेसिकली बहुत स्टिकी बिजनेस है। एक बार कस्टमर अंदर आता है और सर्टेनली, तो प्रोडक्ट यूज करता है, तो वो हमारे साथ लंबे अरसे के लिए रहता है। तो इज दिस थिंकिंग राइट? बिल्कुल ठीक। अगर एक प्रोडक्ट परफ्यूमरी, द फ्रेग्रेंस और फ्लेवर बिकम्स आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, हाँ। हमारी ड्यूटी बनती है एक बार जब प्रोडक्ट और अप्रूव हो जाए, तो उसको मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को, उसके शेड्यूल को मेंटेन करना। This is the biggest credibility of Sachi Rom, that we have never ever failed in any of the commitment. तो मनोज जी, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कस्टमर, सर मोटा मोटी सर रिपीट बिजनेस कितना होगा हमारे लिए मोटा मोटी? Every business, we get repeated, and कुछ तो बिजनेस ऐसे हैं जो कि हमारे 2 दशक से 3 दशक से हमारे वो बिजनेस वेरी सक्सेसफुली, and they are growing. We are growing with them. करेक्ट। I'll say we are growing with them. ओके ओके, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी विच कस्टमर आपको देता है, आपके प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करता है। सर मुझे बताइए, सर प्राइसिंग हमारे बिजनेस में कैसे होता है? लाइक कोई पुराना कस्टमर है, बड़ा वॉल्यूम है, तो आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तरीके से प्राइसिंग डिसाइड करते हो, या बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर, कि अगर नया कस्टमर है तो आप उसको सैंपल देते हो और प्राइसिंग उनके लिए थोड़ी अलग होती है? तो मोटा मोटी सर प्राइसिंग कैसे हमारे धंधे में चलता है? बल्कि जो नया कस्टमर होता है उसको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। नया कस्टमर मीन जो इंडस्ट्री में नया आया है। हमारे मगर ज्यादातर कस्टमर हमारे वो कस्टमर्स हैं जो कि हमारे साथ दशकों से, फ्रॉम द डिकेड्स, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम यूजुअली उनकी ब्रीफ के ऊपर काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट वो हमें देते हैं कि उन्हें जो फ्रेग्रेंस या फ्लेवर चाहिए, उसका उसका किस डेमोग्राफी के लिए चाहिए, किस एज ग्रुप के लिए चाहिए, किस जेंडर के लिए चाहिए, वहाँ पर कौन से सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं, कौन क्या बेंचमार्क है, और उसके अंदर प्राइस रेंज क्या है। हम लोग उस प्राइस रेंज के हिसाब से देते हैं। एक याद रखिएगा, इंडियन कस्टमर सबसे स्मार्ट है, सबसे इंटेलिजेंट है। India is a very cost conscious market. Not only cost conscious, but a very sensitive market. You have to remain on the toes. You have to provide the best of the product at the best of the price to not only succeed, but even to sustain. With the grace of God, we are sustaining, and we are growing very fast. नहीं, आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू मनोज जी। मनोज जी, अभी फाइनेंशियल थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। मुझे पूछना है कि सर हमारे इंडस्ट्री में आपने बोला कि जो हमारा स्किल सेट है, फ्रेग्रेंस बनाना हर एक के लिए, यू हैव टू कस्टमाइज इट, यू हैव टू एक्चुअली
cater to the customer's requirement as per his kind of variable. सर मुझे बताइए, इस इंडस्ट्री में रिपीट बिजनेस मिलने के लिए और कस्टमर को पकड़ने के लिए ऐसा क्या वैल्यू एडिशन हम करते हैं जो दूसरों से बेहतर है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मनोज जी, क्योंकि देखिए, मैं आई वोंट लाइक टू कंपेयर एनी कंपनी विथ यू, बट सर मैं आई वाज सीइंग अ लिस्टेड कंपनी एसएच केलकर। सर उनके मार्जिन और आपके मार्जिन में मैंने देखा, तो सर आपके मार्जिन ऑन अ स्मॉलर बेस आर सिग्निफिकेंटली बेटर। तो सर आप ऐसा क्या करते हो कि जिससे कस्टमर भी खुश है, रिपीट बिजनेस भी आता है और मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं? तो सर दो तीन क्वालिटेटिव पॉइंट्स हमको बताइए जिससे वी कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। आप मुझसे वो बात पूछ रहे हैं जो कि हमारा इंडस्ट्री का एक ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें यह मिला है शेयर करने का। We are not only in the fragrances, which is a skill, we are in the technologies also. Very successfully, we are able to develop the technologies for the slow release, for the, like our Sec Natura, Sec Veda, Sec Mexicab, Sec SACH, Sec, सैकोडोकॉन। ये हम लोगों ने परफ्यूमरी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज जो डेवलप की है। आज आपको समय समय से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। आज आप लकीर के फकीर होके नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने, मेरी अपनी साइंस बैकग्राउंड है, ध्रुव के साइंस बैकग्राउंड है, उसके अलावा हमारी वी हैव अ ह्यूज टीम। हमारे यहाँ पे एवरेज जो एज है कंपनी में साथ काम करने की, वो ऑलमोस्ट 25 साल की है। कोई 35 साल से काम कर रहा है, तो कोई 15 साल से। वी आर वर्किंग एज अ फैमिली, एज अ टीम। और हम लोग बड़े कॉस्ट इफेक्टिव वे में लो ओवरहेड्स के ऊपर हम काम करते हैं। और वी आर वेरी ग्लैड कि वी आर एबल टू मेंटेन आवर प्रॉफिट मार्जिन एट अ वेरी गुड लेवल। नहीं नहीं, आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू मनोज जी। मनोज जी, नाउ आई थिंक इफ यू डोंट माइंड सर, ध्रुव को भी मैं एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। सर्टनली। Dhruv, sorry to keep you waiting, but I No was problem. seeing the financials of the company. Basically, since you are the whole-time director, very impressive numbers for FY25, both on the top line as well as on the profitability. Now, what was the key reason for this? Was it bigger volume growth or better price improvements you got for your products? What exactly was the reason for this operational improvement? If you could please share your thoughts. Yes, for sure. So there were many reasons. There was not one reason for this. If you're talking about the growth in our top line on our revenue side, we've shown a substantial growth of around 26.37% in the last financial year. This was due to the increase in both our domestic sales and even the export sales. So the company contributed approx 11% of expanding its reach to newer market segments, newer customers as well. And about somewhat the remaining part came from existing customers due to their consistency in demands of the products within the domestic markets as well. आई थिंक वेल टेकन। मनोज जी, एक सवाल आपको है सर। मार्जिन्स में मैं आपको कोई नंबर पूछना नहीं चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होगा। बट सर, कैन वी एज्यूम कि कम से कम ये मार्जिन्स हम आने वाले साल में, दैट इज 26 के लिए भी सस्टेन करेंगे होपफुली? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि हमारी जो नया प्लांट आएगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उसका बेनिफिट भी हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। बट यस, यू नीड द प्रॉफिट्स टू कंटिन्यू टू ग्रो, टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर फैसिलिटीज। हमारा हमारे बिजनेस के अंदर केवल सिर्फ परफ्यूमरी डेवलप करना ही नहीं है, फ्रेग्रेंसेस डेवलप करना, टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, उनको एप्लीकेट करना, उनको इवेल्युएट करना, आपका क्यूसी, these are the very very important segments of the our business, and we have to remain focused and improve upon in every segment of the of this industry. तो आई थिंक वेरी वेल सेड। उसका मतलब सर, आगे हम ये मान के चल सकते हैं कि आगे का जो रनवे है वो बड़ा है, और प्लस मार्जिन के लिए भी स्कोप है आगे और बढ़ने के लिए, वंस योर न्यू फैसिलिटी इज ऑपरेशनल। सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज इंटरव्यू का है सर, वी आर प्लानिंग टू गो पब्लिक। सर, इफ यू कैन गिव जी, अस सम आइडिया मनोज जी, कि हम कितना पैसा कैपिटल मार्केट से रेज कर रहे हैं, और बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पैसा रेज करने का? बहुत बढ़िया। देखिए, हमने जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में, वहाँ पर हम लोगों ने एक
बड़ी अच्छी लोकेशन और बहुत सुंदर हम वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं, उसके पार्ट फाइनेंसिंग के लिए। और दूसरा आइडिया ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करना। You cannot remain a family company to grow globally. Okay, so that is the idea. और हमारा ये जितना भी हम जो रेस कर रहे हैं वो नई फैसिलिटी को के पार्ट फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। ओके। और आइडिया ये है कि हमें लोगों के साथ जुड़े, हमें और हमें इनपुट्स मिले, और लोग इसमें हमारे को जिनकी अपना स्किन इन द गेम, और उसको कॉर्पोरेट कल्चर के साथ आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। मनोज जी, एक सवाल जो फाइनेंस रिलेटेड है, जो सारे एनालिस्ट पूछते हैं, तो मुझे भी आपसे पूछना है कि सर, हमने अभी बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे ये नए प्लांट से, तो सर मोटा मोटी हम्म। ये प्लांट को स्टेबलाइज होने में कितना समय लगता है इन आवर इंडस्ट्री सर? नया प्लांट डालने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल? और सर एसेट टर्नओवर, यानी अगर मैं 100 रुपया बिजनेस में ग्रॉस ब्लॉक में मशीनरी में डालता हूँ, तो मोटा मोटी सर 2 या 3 साल में मुझे 100 से 200, 300 करोड़, 300 रुपया मिलेगा। आई मीन व्हाट इज द एसेट टर्नओवर मल्टीप्लायर, वो जरा थोड़ा सा समझाइए। देखिए, हम तो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में पुराने हैं। हम कोई नया बिजनेस के लिए, कोई नया प्रोडक्ट के लिए नहीं लगा रहे। बिल्कुल। हम अपने एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की मच एडवांस एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जिस दिन हमारा प्लांट आएगा उसके बाद उनको 30 डेज का टाइम होता है उसका इसके लिए, कमीशनिंग के लिए। और मीन्स उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद प्लांट प्लांट हमारा पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अंदर कोई समय नहीं लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आएगा तो हमने नए ट्रायल लेने हैं कि कैसे होंगे। हमारा ऑलरेडी रोबोटिक प्रोडक्शन है, उससे हम बेटर रोबोटिक प्रोडक्शन में जा रहे हैं। ओ, ठीक। और सर मनोज जी, ये नया प्लांट जो हमने अभी प्लान किया है पब्लिक इशू के पैसों से, सर ये कभी से कमीशन होगा मोटा मोटी? ये हमारा नया प्लांट भी उसी कंपनी से आ रहा है। हॉलैंड की कंपनी है जिन्होंने हमारा पहले लगाया। नट एंड बोल्ट तक हम लोगों ने, क्योंकि ये एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, एक प्रिसीशन, एक एक्यूरेसी, एक स्पीड, उस हिसाब से लगा रहे हैं। और हमारा उसका प्लांट का हमारा ऑर्डर हो चुका हुआ है। अब से 6 महीने के अंदर प्लांट आ जाएगा। उसके बाद अगले उसके 3 महीने के अंदर प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। चलो। हमारा जो सिविल पार्ट बिल्डिंग का पूरा कंप्लीट है। हम लोगों ने उसके अंदर जो एमईपी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, इंटीरियर, ये सब भी हम लोगों ने फाइनल कर दिए हैं और सबका काम चालू है। जब तक प्लांट आए उससे पहले पहले हमारा सारा काम हमारा रेडी होगा। ठीक। और मनोज जी, हमारा मैं देख रहा था आपका प्रोस्पेक्टस और प्रेजेंटेशन, सर हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 7,60,000 किलो है, बराबर? जी। सर जी। अभी एक्सपांशन के बाद ये जब नया प्लांट आएगा मनोज जी, तो अपनी कैपेसिटी कितनी होगी मोटा मोटी? हमारी ये कैपेसिटी हो जाएगी। हमारी या कैन यू कैन टेल इट इज विल बी फ्रॉम। हमारी कैपेसिटी 7,60,000 से बढ़ गए 27,60,000 पे ओ, हो जाएगी। 27 लाख हो सो जाएगी। बिग जंप इन जी, तो कैपेसिटी। we are aiming for a much bigger capacity, and we are expecting a lot of new business and growth in existing businesses, हमारे existing customers से और नए customers से. So we are preparing ourselves for the future. I think, Dhruv, one question which is very relevant here is that now with such a large capacity which you are building up, can we assume safely that for the next 2 years at least, you all are fairly adequate on the capacity? You all will not have to do any major capex again? Not immediately, but we hope God gives us enough business so we can set up another bigger plant in the near future. ओके, ओके, ओके। एंड मनोज जी, ये सवाल पूछना था कि सर ये जो फैसिलिटी आ रही है एग्जिस्टिंग सेटअप में ही आ रही है या इसके लिए कोई नई जगह आपने ढूंढी है? यानी नहीं, जी जी, ये हमारा जो नई फैसिलिटी आ रही है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में जो ठीक। जेवर है ओके, वहां पर है। और हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, और ओके। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे बाकी भी फैसिलिटी हम अगले 4-6 महीने के अंदर हो जाएंगी, और प्लांट 6 महीने के अंदर आ जाएगा। हम अगले 9 महीने के अंदर लगभग हमारे प्रोडक्शन इसकी वहां पर नए वाले प्लांट में शुरू हो जाएगी। ठीक। सर अभी मुझे बताइए सर, आपका नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल जो धंधे में होता है वो कितना है? क्योंकि सर मैं आपके बैलेंस शीट को देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने FY 25 में सर करीबन 21-22 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है, जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया माना जाता है।
पिछले साल करीबन 9 साढ़े 9 करोड़ था, इस साल 22 करोड़ था। तो पहले सर बताइए कि ये इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल सर आपने कैसे किया, क्योंकि इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आया है, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और सर और एक बात मैंने कैश फ्लो में देखी, आपने करीबन 24-25 करोड़ का कैपेक्स भी किया है, कुछ एसेट ऐड किए। तो सर इसके बारे हम्म। में जरा मेरे को समझा दीजिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, आई विल नॉट, वी आर नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग, बट जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने अपना, एक हमारे में भी एक लगन और मन में एक इच्छा शक्ति थी। और दूसरा हमारे पास एक, जब आपको सक्सेस मिलती है, व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर, सो देन स्काई इज द लिमिट। सो हमारे जैसे अभी ध्रुव ने बताया कि हमारा जो बिजनेस में 11% बिजनेस नए अकाउंट्स का है, हाँ। और सबका बिजनेस आगे इंक्रीज हुआ है। मोर इफेक्टिवली हम लोगों ने अपने काम को, ऑपरेशंस को किया है, और हमारा उससे ये हमारा ये सब सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट आई है। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं पूछ रहा था मनोज जी कि ये 24 करोड़ का जो कैपेक्स आपने डाला है, जो कैश फ्लो में दिखता है, सर ये हम्म। दिस विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री जो आप नोएडा में डाल नहीं, रहे ये हमारा जो नया प्लांट है, जो उसमें हमारा पार्ट है कंट्रीब्यूशन उसका, हो? उस वो इन्वेस्टमेंट ऑल भारी है। Basically, it was part funded by the company, initially from the ऑफ company. कोर्स, ऑफ कोर्स, या Okay. इट I इज, would like to I would like to जी। add on here. Yeah. Till 28th of May हमने अभी तक 46 करोड़ अच्छा। अपने इस नए जो प्लांट हमारा आ रहा है उसके लिए वी ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन टू इट। सो जो आप बता रहे हैं वो लास्ट ईयर का बता रहे हैं फाइनेंशियल का, आई कैन गिव यू द लेटेस्ट फिगर्स। Okay. एंड जो आईपीओ प्रोसीड्स आ रही है वो पार्ट फंडिंग के लिए आ रही है, इसके लिए समझ। द प्रोजेक्ट इज नए बिगर। प्लांट की एंड प्लांट। एंड हम उसके लिए वी आर पुटिंग आवर ओन फंड्स आल्सो alongside. नहीं समझ गया, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। मनोज जी, नाउ वन रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सर आपने बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी कर दी है। नाउ न्यू इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू जॉइन द ग्रोथ जर्नी विथ यू। सर ऑन अ वेरी लॉन्गर टर्म बेसिस सर आप शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करोगे? मेरे ख्याल से देखिए, दिस इज अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। सर आपके साइड से सर लोगों को उम्मीद है कि कंपनी अच्छे प्रमोटर से मैनेज हो रही है, आपने काम भी बहुत अच्छा किया है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। तो सर आप उनको क्या ब्रॉड मैसेज देना चाहते हो कि वो अगर हमारी कंपनी में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सर वैल्यू क्रिएशन आपके साइड से आप क्या क्या कोशिश करके उनको रिवॉर्ड करोगे? हम जो फोकस्ड हैं टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पे, आज समय ये है कि आज जो समय से पहले, समय से आज ज़्यादा एडवांस कौन है, हमारे वो इनोवेशन जारी रहेगी, हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जारी रहेगी, जारी ही नहीं रहेगी, ज़्यादा गति के साथ आगे बढ़ेगी। हम जो हमारे पास नया सेटअप आने के बाद, जो हमारे पास ग्लोबल अकाउंट जिनके लिए हाँ। हम ये सोच के कि उनको ये मिनिमम ये रिक्वायरमेंट चाहिए। और आज की तारीख में आप देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से बिजनेस, कुछ ऐसे ग्लोबल सिनेरियोज हैं कि इंडिया से बिजनेस चल जाए, बट इंडिया से बिजनेस जाएगा नहीं, इंडिया में बिजनेस आएगा, और इंडिया में बिजनेस आने की वेट कर रहा है। हम्म। तो बेसिकली मैं ये मान के चलूं मनोज जी कि आगे आने वाले सालों में डोमेस्टिक फोकस तो है ही हमारा, बट आगे हम्म। इवन ग्लोबल क्लाइंट्स विल गेट एडेड टू आवर किटी। सो इज दिस थिंकिंग राइट? देखिए, ग्लोबल क्लाइंट्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए अपने एंड प्रोडक्ट के लिए। ओके। ओके। ठीक है। नॉट, देखिए, एक तो इंडियन कंपनीज हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। वी आवर इंडियन कंपनीज आर द न्यू ग्लोबल जायंट्स, न्यू ग्लोबल मल्टीनेशनल्स। उसके अलावा जो मल्टीनेशनल्स हैं, उनको भी इंडिया में जगह चाहिए। उनको लगता है, मेरे ख्याल से आप शायद मानेंगे, कि इंडिया इज अ वेरी सेफ कंट्री टू पुट देयर इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑल काइंड, नो न्यूसेंस। सो एक इंडिया का ग्रोथ हमारे ही सेक्टर में नहीं, मेरे को तो सभी सेक्टर्स के अंदर बहुत इंडिया का एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ नजर आती है। बढ़िया, आई थिंक बहुत अच्छा लगा सुनने। सर आखिरी सवाल मनोज जी, हमने कोविड देखा है और उसके बाद अभी भगवान की कृपा से सर नॉर्मल सी आ चुकी है। सर हमारे हम्म। धंधे में सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? सर आपने इतना 40 साल में बिजनेस को देखा है, अप्स एंड डाउन देखे होंगे, मुझे बताइए सर सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है जो आप ऑलवेज मॉनिटर करते हो ताकि पूरी ऑपरेशन स्मूथली कवर हो? तो सर इसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क है कि आप स्टैग्नेंट हो जाएं, आप सेटिस्फाइड हो जाएं। मेरे को उसके अलावा तो कोई ऐसा रिस्क नजर नहीं आता कि जो बिजनेस के ऊपर करे। और आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग ना तो स्टैग्नेंट होंगे, ना कोई ऐसा सेटिस्फाइड होके बैठ जाएंगे। हाँ। ओके।
सो और आगे देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप यूजिंग द फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स. यू कैन चेंज from one product to the other. You stop using one soap, but maybe you start using the other one. करेक्ट. But the industry will continue to grow. हाँ, बराबर. नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है. तो मेरा यही मानना है सर कि रनवे बहुत बड़ा है हमारे लिए और आगे भी हम अच्छा जी ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे. So sir, जी. thank you very much, Manoj ji. Dhruv, thank you very much for your time also. I think it was Thank you nice so much. for both of you. And sir, please accept my best wishes, sir. आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए को बहुत बहुत बेस्ट विशेस. धन्यवाद. Thank you very much. So nice of you. Thank Thank you you. for your Pleasure talking to you.